Good morning, students. I'm Swati Vijay Kullutkar. And I'm going to teach you maths. Um, in this uh, in this class, we are going to teach um, relations and function sub chapter. This is the second chapter in your math. Okay. Now, you have one normal idea now. What's the meaning of relations? Basically, relations are like mother, father, son, father, or granny, grandpa. These kind of relations we all very well know. But uh, what about the mathematical relations? Do you have any idea about these mathematical relations? There are also mathematical relations available in our math subject. Basically, we have learned it from starting of our math subject, like line A parallel with the line B. This is one relation. Again, line is the subset of one group is subset of another group, or again line A is equal to line B. These all are relations, and these all relations comes in mathematical relationships. Now we have to learn what is the actual meaning of relations in our mathematics. Okay, so basically uh, for knowing the actual idea of any equation or any terms, we have to divide it in different parts, like in this equation. For knowing what is the meaning of, or for finding out the A, B and C value, we have to know the individual value of all these things. But for that, we have to know about these individual value. Now, this value is supposed to be 0, this value is supposed to be 1, and C is nothing but the 2. So, you will get the answer like 3, right? But these all things you have to maintain in one sequence or in one equation, and this equation is nothing but the relations, or you can say I'm going to tell you the different example. Maybe this is difficult for you. Like mm, a regular basis, like father plus mother. What this? This is one relationship, right? Father plus mother. But um, father plus son, again father plus grandparents. These all show you the typical relationship with each other. Like father and mother showing the marital relationship. Again, father son showing the son or dear relationship. Again, father and grandparents showing you the son relationship. These all things are belongs to relationships. Now, uh, in this chapter, we just learn the set of object, how to relate with the set of another object, or the pair of objects relate to another pair of object. And for these relations, we have some theorems or some definitions, and we will have these definitions in next part. So first we have just little idea about the relations and functions. I think you have heard the actual definition of relations according to our family factors or our known relationships. Okay, now we have function. What is the meaning of function? Uh, I'm going to tell you something like
granny plus grandpa, right? Then father plus mother, then sister plus brother. These all belongs to one equal relationship, or these all pairs, these are the pairs, all come in one uh, typical group, and that group is known as family, right? These all are come in one group, that is family. But this is according to our regular known. But what about in mathematics? The mathematics, in mathematics, like x belongs to y, then y belongs to z, z belongs to u, or you can say it is as x belongs to f of y, then y belongs to f of z, then z belongs to f of u. But according to relationship, you can write these all as, right? Basically this way. This is a differentiate of this, and it will be differentiate with this. Okay. So what is this? It shows the complete nature or complete history or complete relationship of these all functions, right? So it is known as the family of these functions, right? So what is the role of family in mathematics? Basically, when all relations come in one set, then that set or that group of sets are known as the function of that sets, or rule of that sets. Like we can say the family rule. We never differentiate as a father ruling or mother ruling or anything, but we can say the family ruling. The same way here we can say like f of x is ruling, right? F of x means what? Function of these all terms, right? So this is the in simple terms I am going to tell you that relations, set of relations determine the set of relations represent the function of any equation or function of any set. This is the definition of function. Okay. Now there are some rules actually, but before that rules we have Cartesian product. This is the one term come in relation and function terms. Now we all know very well about the multiplication. सबको पता है कि multiplication होता क्या है, right? Multiplication means what? Multiplying one object with the second one. This is the multiplication, right? But what is the meaning of Cartesian product? Cartesian product का मतलब होता है जैसे P एक फैमिली है या फिर एक ग्रुप है, उसके अंदर x और y दो मेंबर है. It is called as x and y. X and y that means object. These are the object. ये दोनों क्या हो गए? Object. लेकिन जब ये दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? Pair. Right? Now this is the pair because having the two objects. Okay. Now ये होगी P की फैमिली, supposed to be. अभी Q. Same here, two object and one pair, right? But जब आप multiplication करते हो, तो multiplication करते हो तो आप क्या करते हो? P multiply with the Q. But what about this? How would you multiply? So
हो तो इसका एक रूल होता है, लाइक एक्स वाई मल्टीप्लाई विद दी ए इंटू बी। पर मल्टीप्लाई करना कैसे? सो आपको पहले ये जो टर्म है, जो रूलिंग टर्म है या फिर जो क्या डेसिमल टर्म है ऐसे भी बोल सकते हो, उसके पहले पार्ट से आपको यूनिट टर्म के दोनों पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करना है। द सेम वे उसके सेकंड पार्ट से आपको अगेन यूनिट पार्ट के पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे? x इंटू ए, ये हो जाएगा आपकी पहली टर्म। दूसरी टर्म आपकी क्या होगी फिर? x इंटू बी। सेम वे तीसरी टर्म क्या होगी आपकी? y a एंड y b। सो आपका ग्रुप कैसे बनेगा? आपका ग्रुप या फिर आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन का आंसर कैसे आएगा? दिस। राइट, when you have to multiply with the all object with another pair of objects, and when you get the actual answer or result, that result is called as the Cartesian product of set or Cartesian product result. और सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि जब एक पूरे सेट को या फिर एक पूरे पेयर को जब आपको दूसरे पेयर से मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी इंडिविजुअली पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ, पहला ऑब्जेक्ट तीसरे के साथ, दूसरे पेयर के, या फिर जैसे अभी हम लोगों ने किया, ये इसके इंडिविजुअल पेयर थे x एंड y, ये थे p के, और q के क्या थे? a और b। सो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करते वक्त क्या किया? उसके हर पार्ट को या फिर हर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंडिविजुअली दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि दूसरे पेयर का है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ? हमको एक डिफरेंट अमाउंट का रिजल्ट मिला। तो ये जो डिफरेंट अमाउंट वाला रिजल्ट होता है, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एंड आप जब नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो लाइक दिस वे, सपोज आप क्या करते हो? पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन आप यूनिट की जगह जीरो भी रखते हो बाद में। सेम वे होता है, सेम वे यहाँ पे अगेन आप मल्टीप्लाई करते हो, और पर यहाँ पे आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो आंसर्स किस तरीके के होते हैं? यहाँ पे आपको आंसर 3 डिजिट में मिलते हैं, बट जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपके जो आंसर्स आते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट या फिर आपके सेट में पेयर कितने हैं उसके हिसाब से आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके कितने नंबर्स आए या फिर कितने पेयर आए हैं? 4 पेयर्स आए, और इसके इंडिविजुअल सेट में भी कितने ऑब्जेक्ट थे? 4 ऑब्जेक्ट थे, इसके पास 2 और इसके पास 2। सो आपके आंसर में भी 4 ही आना चाहिए। अगर इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, तो कितने आएंगे? 10 में कितने आएंगे? इट शुड बी 9। अब वो 9 कैसे? ये इसका मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ, स्क्वायर्स जो होते जाते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, सेम वे 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का सॉल्व करोगे, अगर आपको लगता है कि आप गलत जा रहे हो, तो ये रूल आप याद कर लीजिएगा। When आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get the answer 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 4 को 4 से करोगे तो 16, 5 को 5 से करोगे तो 25। So it will give in square. That's why Cartesian product basically हम लोग जो नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं उस तरीके का नहीं होता, उसमें स्क्वायर होते जाता है। So इतना आपको याद रखना है अभी, ठीक है? और आप सोचोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? हर चीज की एक जरूरत होती है, हर टर्म के हिसाब से हम लोग जाते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली अभी आप उस लेवल पे आ गए हो कि जहाँ पे आप वेक्टर पढ़ोगे, आप सेट्स पढ़ोगे। सो उन सब जगह पे आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या फिर एक सेट को दूसरे सेट के साथ आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। सो पहले कि जब बच्चे होते हैं तब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना,
2 से 3 को मल्टीप्लाई, ये बच्चों वाला काम हो गया। अभी आप जब हायर एजुकेशन लेने जाओगे तो आपको वेक्टर के साथ, स्केलर के साथ ये 2-3 टर्म्स आपको याद करना पड़ता है। सो उस जगह पे आपको ये सब चीज़ें काफ़ी यूजफुल होती है, ठीक है। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सिंपली A having set like red and blue, सेम वे B है, B का सेट है आपके पास A, B and C। नाउ आप बोलेंगे ये तो कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज देयर इज हैविंग इन 5 सबको मिला के अगर देखा जाए तो 5 आ जाएगा। सो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे? मैंने अगर आपको कहा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है तो कैसे लोगे आप? 1 2 3 हो गया, अगेन 1 2 3, कितना हुआ? कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ। चलो लेट मी एक्सप्लेन। कितना हुआ? 6, राइट। बट 6 होने के बावजूद भी इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या हुआ? कैसे हो गया ये? कंफ्यूजन हो गया, कैसे हुआ? सो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताती हूँ ये भी कैसे होता है। लाइक according to partition product you have to multiply the each individual object with the another one। so हम लोगों ने हर ऑब्जेक्ट को एक साथ मल्टीप्लाई किया, हम लोगों को क्या मिला? 6 ऑब्जेक्ट मिले इन 3 पेयर। सेम वे यहाँ पे भी 6 ऑब्जेक्ट मिले इन 3 पेयर। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो डिफरेंट दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है। सो तीनों को मिला के एक्चुअली अगर दोनों को अगर हम लोग ऐड करें सो इट शुड बी 5, और 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई तो ये 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 25 नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इस जगह पे आपको एक चीज याद रखनी है और वो ये, इसकी लीडिंग टर्म कौन सी है? ए। ए में कितने ऑब्जेक्ट है? ओनली 2 ऑब्जेक्ट है, राइट। सो 2 एंड ये जो फॉलोअर टीम है उसमें कितने ऑब्जेक्ट है? 3, राइट। कितना आ रहा है आपका आंसर? आ गया 6, सही है। अगर इन केस आपको अगर इसमें डाउट है तो आप सबसे पहले जो लीडिंग टीम होती है उसके जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उसका स्क्वायर निकालिए, और जो सेकंड टीम होती है या फिर जो फॉलोअर टीम होती है उसमें जितने ऑब्जेक्ट रहते हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 into 3 you will get the 12 and your answer is 12 here, right? This is the tact actually. If you want to know then you can, and if you don't know so leave it, doesn't matter, but you have to know for checking your answer whether it is right or wrong. Okay, now one more thing, यहाँ पे और एक चीज रहती है। जैसे ए, ये जो सेट है इट शुड बी कंटेन समथिंग, कुछ तो भी होना चाहिए इसमें। इट शुड नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है। सेम वे बी अगर नल सेट है या फिर वॉइड सेट है या फिर 0 है इसमें, सो योर आंसर विल बी void or null set, right? ये होता है, ये आपको भी पता है, इन जनरल है ये। लेकिन अगर इस टाइप का अगर आपको पार्टीशन प्रोडक्ट दिया जाए तो इसका आंसर आप सिर्फ और सिर्फ 0 पे लिखोगे, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं आ सकता। अगर एक नल सेट है, एक वॉइड सेट है और एक नॉन जीरो सेट है, सो मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 0 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए और
पे वो बता रहा है कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऐसा है कि जीरो नहीं है पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन एक टिपिकल रेंज तक के दिए, सो आप जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो इसके वैल्यू तक के शायद ही आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये जीरो है, सो इसका आंसर भी जीरो आना चाहिए, ये इक्वलिटी टर्म है। अगर इन केस इसका आंसर अगर -1 भी आता है और इसका आंसर जीरो आता है, वैसे तो आएगा नहीं, ये बहुत कम रेयरली होता है, अगर इसका आंसर 1 आता है और इसका आंसर -1 आता है, देन योर इक्वेशन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, सो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अगेन वन मोर थिंग, दो टर्म होते हैं, जैसे सपोज D एंड P, ये वन ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका x एंड y। नाउ आपको बोला जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है क्या, वो बताइए। लाइक a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। अगर ये टर्म्स में अगर वैल्यूज दी रहती तो शायद आपके आंसर इक्वल आ भी जाते, लेकिन चलो दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं। सपोज टू बी ये वैल्यूज है और ये ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ फॉर a इंटू बी, सो यू विल गेट bx अगेन by अगेन px एंड py। बट व्हाट अबाउट b इंटू a, इसमें क्या होगा, टर्म से उल्टी हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यू गेट xd then xp again yd and yp, right? There is no any similar term, right? dx not equal to xd, dy not equal to yd, again px not equal to xp and py is not equal to yp. Then what about this? इसको भी ट्राई करके देखते हैं, चलो। so इसका क्या होगा, this is your first term, forward a into b, बट सेकंड टर्म के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई विद दिस। ठीक है, क्या हो रहा है, कौन सी टर्म चेंज हो रही है, दिस इज द मिडल टर्म। सही है, अगर मिडल टर्म चेंज हो रही है दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट कभी भी एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं रह सकता। अगर उसका टर्म चेंज कर दी है या फिर उसका ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर दिए तो आपका जो फाइनल आंसर है वो इक्वल नहीं रहेगा। सो ये आपको मतलब बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर a इंटू बी दिया है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई दिया है एंड पूछ रहा है कि इक्वल्स टू दूसरा सेट पहले सेट के साथ, सो योर आंसर शुड बी नेवर इक्वल और इट कैन नॉट बी इक्वल, ये होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। ओके, ये हो गया एक टर्म। और वहाँ यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, लाइक अभी मैंने आपको दो टर्म्स बता दिए, और एक है लाइक n is a suffix of p is equal to like q, then n is the suffix of r is equal to small r। so आपको अगर बोला जाए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, so you have to multiply like this, इसका आंसर मिलेगा आपको qr। लेकिन ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका जो सफिक्स है वो इक्वल है। अगर सिमिलर है, अगर इन केस यहाँ पे अगर m होता सो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई विद दिस। ओके, सफिक्स अगर इक्वल है तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया अनदर रूल। ओके, देन अगेन we have some problems, so
I'm going to tell you, I'm going to teach you one problem. Like I have one equation or one term and have to find value of x and y. Now, whenever you have any problem or any kind of equation, you have to read that equation or that problem carefully, because एक मल्टीप्लिकेशन या फिर एक डॉट या फिर एक इंक्लाइंड लाइन आपका पूरा इक्वेशन बदल सकती है। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एक्स और वाई का वाई की वैल्यू पूछी है। इन्होंने आपको प्रोडक्ट नहीं पूछा, इन्होंने आपको नहीं बोला है कि आपको एक्स मल्टीप्लाई विद वाई बताना है या फिर आपको एक्स डॉट वाई बताना है। डॉट and multiplication, these are the two factors basically. This is the scalar format and this is the vector format. ठीक है, बेसिकली ये आपको आएगा नेक्स्ट टर्म में वेक्टर क्या होता है या फिर स्केलर क्या होता है। आप अभी हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, लुक एट इट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 1, ये एक सेट है, दूसरा सेट है y माइनस 2। लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, कॉमा। दैट मीन्स these are the sets of two pairs, राइट। ये एक पेयर होगी, ये दूसरी पेयर होगी, लेकिन ये पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, सेट्स। और सेट्स को रिप्रेजेंट किससे किया हुआ है इन्होंने, 3,1। नाउ आपको 10th में भी पढ़े हो क्या होता है, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे अपने से, अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 होता है। सो सिमिलर हियर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो दिया नहीं है, इन्होंने कॉमा दिया है, दैट मींस दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, दो अलग टर्म्स है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। एंड सेम हियर, यहाँ पे भी इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। सो हम लोग इनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो x प्लस 1 गोइंग विद द 3, अगेन y माइनस 2 ये भी जाएगा 1 के साथ। सो सिंपल आंसर आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा, सही है। ये हो गया आपका सिंपल आंसर। लेकिन ये सब सिंपल इसके लिए, जब आपको कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया जाता है इसी टर्म में तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। ये एकदम सिंपल था, आपने 10th में भी पढ़े हो, इसलिए आपको इसके ऊपर इतना मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, लाइक P इज इक्वल टू A B C, then Q is equal to R only। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, P इंटू Q इज इक्वल टू Q इंटू P। मैंने आपको तभी बताया था कि ये टर्म्स कभी भी इक्वल नहीं रहते, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस देख के समझ में आना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो रहे हैं उनकी पोजीशन से, दैट मींस दिस टू दैट मींस इट्स आंसर शुड बी फॉल्स और नेगेटिव और नॉट इक्वल। सो यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो वो मैं करके दे देती हूँ आपको वैसे। ओके, P इंटू सॉरी दिस इज द कैपिटल Q, सो A इंटू R अगेन into sorry A comma R, B comma R and C comma R. What about QP? It will be RL, then RB, again RC. कोई सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है?
दोनों जगह अलग है, ए आर है, यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आर बी है, अगेन यहाँ पे सी आर है और यहाँ पे आर सी है. सो योर आंसर विल बी P into Q is not equal to Q into R. इसके सेट्स चाहे एक जैसे हो, लेकिन आंसर जो आपको मिलेगा या फिर फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा. ठीक है, ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम काइंड ऑफ, मतलब जस्ट समझाने के लिए प्रॉब्लम है. आपका एक्सरसाइज अभी तक चालू नहीं हुआ है. ठीक है, अगेन अभी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हम लोग सिंपल प्रॉब्लम से डिफिकल्ट तक के जा रहे हैं. ठीक है, सो इन्होंने दिया हुआ है A having 1, 2 and 3, B is having 3 and 4, again C is having 4, 5 and 6. ये सब क्या है? सेट्स. इन सबको बोला जाता है सेट्स. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. और ये है सेट. ए के सेट में क्या है? 1, 2, 3. बी के सेट में है 3, 4 एंड सी के सेट में है 4, 5, 6. आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? उन्होंने कुछ टर्म्स दिए हुए फाइंड करने के लिए. यहाँ पे दिया हुआ है ए मल्टीप्लिकेशन विथ बी इंटरसेक्शन विथ सी. अगेन सेकंड दिया हुआ है उन्होंने ए इंटू बी intersection में sorry union with A into C. Sorry, this is belongs to union. Union means similarity. Okay. सेट चैप्टर में आपको ये हो गया होगा शायद से, या फिर अगर नहीं हुआ है तो हम लोग पढ़ लेंगे. सो ये जो सिंबल होता है इसको यूनियन बोला जाता है. यूनियन मीन्स इक्वालिटी और सिमिलरिटी. ठीक है, देन द सेकंड वन इज A multiply with the B. This is the intersection. Intersection that means divide या फिर different. ये union है और ये intersection है. ठीक है. Then आपको क्या फाइंड करना है? ये चार इक्वेशन आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेट्स. नाउ जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, यू हैव टू राइट इट इन वेरी क्लियर मैनर, कि जो भी आपका प्रॉब्लम देखे या फिर चेक करे उसको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से दिया हुआ है या फिर किस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट किया है, एवरीथिंग. ओके, लाइक व्हाट वी हैव, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे ए. आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले आप वो लिखो, ताकि आप भी जब पढ़ो तो आपको भी समझ में आना चाहिए. आपको ढूंढते नहीं रहना चाहिए कि आपने कहाँ से क्या लिया हुआ है, आपको क्या करना है. ये सब आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, ओके. ये आपको दिया हुआ है. नाउ इसने हर टर्म आपको सॉल्व करने के लिए बोली है. सो सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्या आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म विल बी A into B union with the C. Okay, now B union with the C. So सबसे पहले हम लोगों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको? लेट B union with the C. इसका मतलब क्या होता है? B और C के सेट में जो सिमिलर या फिर एक की जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, सिमिलर ऑब्जेक्ट. नाउ चेक इट आउट. क्या बी में क्या दिया हुआ है? 3, 4. अगेन सी में क्या दिया हुआ है? 4, 5, 6. 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है. सो सिमिलर ऑब्जेक्ट विल बी this one, the 4. सो 4. ओके, नाउ आपको क्या करना है? ए के पूरे सेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. सो आप कैसे लिखोगे उसको? 1, 2, 3 and 4. So what will you get? 1 multiply with the 4, again 2 multiply with the 4 and 3 multiply with the 4. This is your answer for first equation, right?
ये हो गया आपके पहले इक्वेशन का आंसर। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई विद द b अगेन यूनियन एंड c। दो सेट के बीच का यूनियन आपको निकालना है। अभी दो सेट के बीच में यूनियन निकालना है, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा उसके लिए, a को b से मल्टीप्लाई और a को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग पहले कर लेते हैं a को b के साथ दो सेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो दो सेट कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, वन इज 1 with the 3 again 1 4, सेकंड क्या आएगा 2 3 2 4, तीसरा क्या आएगा 3 3 एंड 3 4। ये हो गया आपका एक सेट, ठीक है। अभी दूसरा आपको क्या करना है, a मल्टीप्लाई विद द c। सो इसका आंसर क्या आएगा 1 with the 4 1 5 1 6, the second one is 2 4 2 5 2 6, and the last one is 3 4 3 5 and 3 6. I'm going to erase this. I hope you have written all this. Okay. So अभी इन दोनों में से आपको इक्वल टर्म निकालनी है, ठीक है। अभी इक्वल क्या है, चेक करो आप, इक्वल और सिमिलर 1 3, देयर इज नो 1 3, बट 1 4 एंड 1 4, these two terms are equal, right? So your answer it will be 1 4 first, then second one is 2 3, there is no 2 3, 2 4, there is a 2 4 again, so 2 4, again the next one 3 3, there is no any 3 3, 3 4, yes there is a 3 4. So you will get the sorry, you have got these three pairs, ठीक है, 1 4 2 4 and 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। नाउ फॉर थर्ड वन, थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, a, दिस इज द इंटरसेक्शन, ठीक है। सो अभी इंटरसेक्शन लिखना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको अदर देन सिमिलर वी हैव टू राइट एवरी ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बी एंड सी में सिमिलर कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट है, सो रिमेनिंग क्या है फिर 3 5 एंड 6, दिस विल बी योर इंटरसेक्शन आंसर, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, आपको a को मल्टीप्लाई करना है b intersection with the c, so you will get the answer like 1 3, then 1 5 1 6, again 2 3 2 5 2 6, again 3 1, sorry no 3 1 3 3 3 5 and 3 6. This is your third answer. Okay. Now the last one. What is the last one? A into B and this is the intersection A into C. मतलब इन दोनों सेट में से आपको जो सिमिलर नहीं है उसको बाहर निकालना। अभी आपके पास ये जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है या फिर सेकंड जो आंसर है उसमें आपने पूरे टर्म्स लिखे हुए हैं। सो अगर आपके पास इस टाइप से टर्म्स लिखे हुए हैं तो सीधे आंसर मत लिखना, पहले क्वेश्चन लिखना है आपको और उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये जो टर्म
ये और ये, यहाँ पे भी ये टर्म जो सिमिलर टर्म है उसको काट के या फिर उसको इरेज करके जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आपको लिखना है यहाँ 1 3, देन 2 3, 3 3, अगेन यहाँ पे आता है आपका 1 5, 1 6, 2 5, 2 6, then 3 5 and 3 6. This is your last answer. Okay. Now if you have any doubt in this or anything, I don't think so कि कोई डाउट होना चाहिए, because आपको पता है आपने किस तरीके से ये किया हुआ है या फिर कैसे किया हुआ है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, so please ask me or tell me anything. Okay, thank you.